Hello children. Morning we have taken multiplication of fractions and reciprocals. Now I am going to present a video ताकि आपको और easy लगेगा. इससे पहले somebody asked me a doubt in activity 5 subtraction वाला sum में question number 3 that is subtract. There they asked me the doubt of question number F, right? So first I'll solve that sum, then I will go to the remaining. 5 and 3 upon 8 minus 1 and 3 upon 4. This is the sum. So as usual हमें पहले क्या करना है, converting the mixed fractions into improper fractions. So 8 5s are 40. 40 plus 3 43 by 8 minus 4 1s are 4 4 plus 3 7 7 by 4. Now you can see both are unlike terms, so we have to find the LCM of the denominators, that is 4 and 8. So 2 2 4 2 1 2 2 1 1. So what is the LCM here? LCM is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 2, which is equal to 8. Now we are taking the first term, that is 43 by 8. We have to make the denominator into LCM. We have to convert the denominator into LCM. लेकिन already 8 है, यहाँ भी 8 है, तो how many times? Only one time. That is 43 by 8. This is the first. What is the second one? 7 upon 4. We have to convert this 4 into 8. इसमें दो ऑप्शन है बेटा. एक तो 4 से जो नंबर आपको मल्टीप्लाई करने से आपको 8 मिलेगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं, या एलसीएम से आप जो डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करोगे तब भी आंसर सेम आएगा. समझ गए ना? जैसे कि 4 2s are 8, ये भी सही है. 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और 8 से 4 डिवाइड करोगे, 8 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज ऑल्सो 2. सो बोथ you can method whichever is easy for you, you can follow that. So 4 means 4 into 2. as I told you, डिनोमिनेटर में अगर जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर से न्यूमिनेटर्स भी करना है. सो यू गेट 14 बाई 8, ये 2. This is the subtraction. So 1 minus 2, that is 43 by 8 minus 14 by 8. Now you can see the denominators are same. मतलब we have converted into like fractions. So what will the next step? 43 minus 14 by 8, which is equal to 13 minus 4 is 9, and 3 minus 1 is 29 upon 8. It is an improper fraction, right? It is an improper because numerator is greater than the denominator. So आप डिवाइड कर सकते हो. 8 29, 8 3s are 24, 5. So the answer is 3 and 5 by 8. So the final answer is 3 and 5 by 8. ठीक है? Understood? Okay. Now we are going to start with the multiplication of fractions. Multiplication of fractions. Okay, so how to start with? We had start with the first thing. We will start with the whole number and fractions. Whole number and fractions. That is, for example, if you are taking the sum, say 9 into 5 by 3, ये तो फ्रैक्शन है 5 by 3, ये तो होल नंबर है
तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे 9/1 डाल के, बिकॉज 9 1 से डिवाइड करो तो आंसर तो सेम ही आएगा. तो 9/1 into 5/3. So what is the next step? As I told in the morning, numerator into numerator multiply करोगे, denominator into denominator multiply करोगे. So you get 9 into 5 by 1 into 3. ठीक है. So you get 45/3 which is equal to 15. ठीक है. द सेम सम दूसरे मेथड पे आप कर सकते हो, जैसे 9 into 5 और बाय 1 into 3. आप देखोगे तो 3 and 9 आप पहले भी मैंने बताया आपको, ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ही करोगे, साइड में कैंसिल नहीं कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो. आप देखोगे 9 and 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9. ठीक है. सो अब क्या होगा? 3 into 5 by 1 into 1 which is equal to 15 by 1 which is equal to 15. आंसर इज गोइंग टू बी सेम. ठीक है. मैं यही बोल रही हूँ, जिसको अच्छे से आता है ये मेथड, यू कैन फॉलो दिस मेथड. जिसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, आप पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी कर सकते हो. सो दैट विल बी द ईजी मेथड टू नॉट एवरी टाइम. थोड़ा सा आप टिल यू गेट यूज टू दिस सम्स, टिल देन आप कर सकते हो. ठीक है. आई गिव यू, वी विल हैव वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम टाइप. सी फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग द योर एक्टिविटी 6 से ही मैं सम्स ढूंढ रही हूँ, उसी से ही कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल 24 into 3 and 1/4. सो 24 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 24/1 into 3 and 1/4. सो 24/1 into 4 3s are, दिस इज अ मिक्सड फ्रैक्शन, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है. 4 3s are 12, 12 plus 1 13/4. ठीक है. सो अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 24 into 13, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 1 into 4. इसमें अब भी आएगा दो मेथड. एक तो आप मल्टीप्लाई करके फिर 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, छोटे नंबर देखो यहाँ तो 9 5 45 तो छोटा सा नंबर था, आपने कर लिया. अगर बड़े नंबर आ गए ना, फिर आपको बहुत टाइम लगेगा, तो आप कैंसिलेशन वाला सीख लो. सो अब देखना है 1 13 तो कोई फ़र्क नहीं है, 13 ही आएगा. देन 4 13 से 13 और 14 4 डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यू गो टू 24. 24 4 टेबल में आता है, कितनी बार आएगा? 4 1s are 4, 4 6 are 24. आपको ये याद रखना है, सेम टेबल सेम नंबर से ही आप डिवाइड करना है. तो अब क्या आएगा? 6 into 13 by 1 into 1 which is equal to 78 by 1 which is equal to 78. Understood? I'll do one more sum. (11/24) multiply by 32. आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्टेप? ये है होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो कैसे लिखोगे? विच इज़ इक्वल टू 11/24 multiplied by 32/1. What is the next step? Numerator into numerator, denominator into denominator. So 11 into 32 by 24 into 1. अब ये देखना है कौन सी दो नंबर को आप एक ही नंबर से डिवाइड कर सकती हो. 11 एज इट इज प्राइम नंबर है. 11 टेबल में 24 तो नहीं आता है, छोड़ दो. नाउ यू हैव टू फाइंड 24 एंड 32 को कॉमन जिस नंबर से डिवाइड होगा. 24 एंड 32 8 से जाएगा, राइट? सो 8 से जाएगा. 8 4s are 32, 8 3s are 24. 8 4s are 32, 8 3s are 24.
ठीक है, 8 से ही करना है आपको, जो नंबर आप ले रही हो उसी से ऊपर नीचे करना है. सो यू गेट 11 इंटू 4 बाई 3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 44 अपॉन 3. सो इट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आप इसको मिक्सड फ्रैक्शन में करना है तो क्या करना है, डिवाइड करोगे 3 44, 3 1s are 3 14, 3 4s are 12 2. So how will you write in mixed fraction? 14, remainder is 2, 14 and 2 by 3. Okay, so this is the final answer. Understood? So when you do the multiplication आपको क्या याद रखना है, अगर if it is a whole number इसको by 1 करनी है, फिर सेकेंड स्टेप इस न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर सकते हो. अगर छोटे नंबर है आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो. आप ऐसे थोड़ा बड़ा नंबर आ गया तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन साइड में कैंसिल नहीं कर सकते. समझ गए? जैसे मैं जनरली मैं आपको बता देती हूँ. सी फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक अ नंबर, फॉर एग्जांपल if you take one number, I'll give you a very easy number so that it will be very easy. See 55 upon 100. ठीक है, इसको आप कैसे रिड्यूस करोगे? एक तो मैंने बोला HCF निकाल के कर सकते हो, अदरवाइज हर टाइम HCF निकालने में भी आपको टाइम लगेगा. सो कॉमन नंबर आप देखो, 55 5 से जाएगा, 100 भी 5 से जाएगा, है ना. तो 55 हाउ मेनी टाइम्स, 11 5 55. ये 100 कितनी बार जाएगा, 20. सो द आंसर इज 11 by 20. इसमें मैंने क्या कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 55 को मैं भी 5 से डिवाइड किया और 100 को भी मैंने 5 से ही डिवाइड किया. सो यू गेट द आंसर 11/20. इसमें मैंने मेंटली कर लिया, है ना. यहाँ मैंने आई एम जस्ट शोइंग इट, that is the only thing. ठीक है. See for example if I am taking this number say 32 and 50, दोनों नंबर किस में जाएगा, दोनों इवन नंबर. आप देखो दोनों इवन नंबर है, 2 से जाएगा. हाउ मेनी टाइम, 2 16s are 32, 2 25s are 50. So answer is 16/25. ठीक है. दूसरा मेथड कैसे, ये ओरली मैंने मेंटली कर लिया बिकॉज टेबल्स आ गया तो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर नहीं तो आपको क्या करना है, इसको HCF निकालना है 32 और 50 को, जो HCF आ रहा है उससे आप डिवाइड करना जैसे हमने किया पहले. ठीक है. नाउ इफ आई एम आस्किंग यू अ सम लाइक दोनों मिक्सर फ्रैक्शंस में हैं. फॉर एग्जांपल say 1 and 2 by 7 multiplied by 3 and 1 by 5. अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू कन्वर्ट द मिक्सर फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. सो 7 1s are 7, 7 plus 2 9, 9/7 into 5 3s are 15, 15 plus 1 16, 16/5. सो अब क्या है, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. सो 9 इंटू 16 बाई 7 इंटू 5. इधर देख लो आप, 5 से 16 नहीं जाएगा, 5 9 से भी नहीं जाएगा, 7 9 टेबल 7 and 9 cannot be divided, 7 and 16 also cannot be divided. तो इसमें you cannot cancel anything. समझ आ रहा है आपको? तो इस कंडीशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा आपको, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. 6 9s are 54, 5 9, 9 1s are 9, 9 plus 5 14. Okay. 6 9s are 54, 5 9, 9 plus 5 14, 144/35. तो अभी आपको डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आई थिंक 4 times जाएगा,
24 3s are 12 plus 12 plus 2 14. 4. So your answer is 4 and 4 by 35. मैं इसलिए ये सम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल गेट एन ऑप्शन टू कैंसिल. ठीक है, समटाइम्स इट हैपन्स यू कैन नॉट कैंसिल. जैसे कि आप यहाँ देखोगे 5 टेबल में जाएगा बस, और किसी टेबल में नहीं जाएगा. 7 बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. 5 टेबल में 16 नहीं आएगा, 5 टेबल में 9 नहीं आता है, 7 टेबल में 9 नहीं आता है, 7 टेबल में 16 नहीं आता. सो वेयर विल यू कैंसिल? यहाँ आपको कैंसिल करने का कोई चांस ही नहीं है. सो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन. आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरी टाइम आपको ये कैंसिलेशन का चांस मिलेगा नहीं. ठीक है, आई डू वन मोर सम देन आई स्टॉप दिस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड विद दिस. I'll do one sum. For example, 10 and 3 upon 8 multiplied by 3 and 1 upon 9. अब converting into improper fractions. 10 8s are 80. 80 plus 3 83. Okay, by 8 multiplied by 9 3s are 27. 27 plus 1 28 by 9. ठीक है. अब नाउ यू हैव टू फाइंड बाय विच नंबर यू कैन. नहीं तो अदरवाइज आपका 83 28 बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइडेड बाई 8 9 और 72 तो बड़ा हो जाएगा. तो मैक्सिमम हम रिड्यूस करेंगे, लोएस्ट टर्म करेंगे ताकि आपको कैलकुलेशंस ईजी रहेगा. अब पहले 8 and 28 को देखते हैं बिकॉज ये दोनों इवन नंबर है. ठीक है, 8 व्हाट आर द नंबर्स यू कैन डिवाइड. 8 1 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, है ना, और 8 से भी जाएगा. सो अब देखना 28 किस में जाएगा. 28 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 से भी जाएगा. दैट इज़ हाईएस्ट. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4. सो आप 8 4 2s are 8. 4 हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स. 4 7s are 28. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करके करोगे. वो हाईएस्ट मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ बेटा. इवन आई एम फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन मैं मन में करती हूँ. आप भी थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करो. सो ये हो जाएगा आपका 8. अभी 9 टेबल में 83 तो नहीं आता है. 9 से 7 तो डिवाइड नहीं कर सकते. सो 2 से 83 भी नहीं जाएगा बिकॉज 2 इज़ एन इवन नंबर. 2 से 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, अगेन 2 इज़ एन इवन नंबर. तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 83 इंटू 7 by 2 into 9 which is equal to 7 3s are 21, 2 7 8s are 56, 57 58 divided by 18. आप डिवाइड करोगे. now you have to divide 581. how many times it goes? 18 3s are I think 54, right? then you get 41. 18 2s are 36. So you get 5 remainder. So how will you write the answer? The answer is 32 and 5 upon 18. Okay, 32 and 5 upon 18. So this is the final answer. I hope you understood to some extent. फिर भी आपको डाउट है तो मैंने जैसे पहले मॉर्निंग में बोला है आपको, if those are having any doubt in fractions, आप अपने टीचर्स को बोल दो, क्लास टीचर्स को. If you need an extra class, फिर I will fix a time and I will inform you. Those who want their extra class, कोई ज़रूरी नहीं सबको ज्वाइन करने के लिए. जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, येस इट इज़ अ कन्फ्यूजन चैप्टर. स्कूल से जैसे पढ़ाते वैसे तो 100% नहीं हो पाएगा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो फिर भी आपको समझ नहीं आ रहे तो आप अपने क्लास टीचर्स को बोलो कि वेदर यू वांट द एक्स्ट्रा क्लास, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट प्रॉपरली. और अच्छा सा करूँगी ताकि आपका मेनली डाउट्स क्लियर करूँगी. तो डाउट्स क्लियर करते हुए यू कैन अंडरस्टैंड. वंस आई क्लियर योर डाउट्स यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, अगर आपका डाउट्स क्लियर हो गया दैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए. ठीक है ना. एंड वन मोर थिंग, जो मैंने एक्टिविटी वीडियो भेजा है आज मल्टीप्लिकेशन का ऑन सैटरडे आई थिंक आई सेंट, तो उसको आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक इट A4 शीट में जैसे वो
बना रहे वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट्स में मैं मार्क्स ऐड करूँगी आपको एक्टिविटीज़। विल बी डूइंग 2 और 3 एक्टिविटीज़ इन दिस टर्म। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी है, तो आप करके जिन्हों भी कर लिया, सबमिट कर लिया, फ्यू चिल्ड्रन हैव सबमिटेड टुडे। जिन्होंने सबमिट नहीं किया, यू कैन सबमिट टुमारो। एंड दोज 30-35 स्टूडेंट्स उन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया सबमिट करने का, यू आर टेकिंग थिंग्स सीरियस, नॉट सीरियसली, दैट्स व्हाट आई कैन से। आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही हो अपनी स्टडीज़ में इतनी बोलने के बाद भी, देन आई थिंक आई हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई डोंट वांट टू गेट एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम एनी ऑफ द टीचर्स रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है ना बच्चे? थैंक यू बेटा।